پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیراڈیز لاز آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ اس سے پہلے کہ ہم فیراڈیز کے لاز پہ آئیں، ہم پہلے یہ ٹرم الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے میگنیٹک فلکس کے بارے میں پڑھا تھا۔ میگنیٹک فلکس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واٹ از میگنیٹک فلکس؟ The total number of magnetic field lines passing through a surface or a coil is called magnetic flux. یعنی کسی سرفیس یا کسی کوئل کے تھرو کتنی میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی ہو اس کو ہم میگنیٹک فلکس کہتے ہیں۔ The total number of magnetic field lines سے یہ ایک ہمارے پاس کوئی سرفیس ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہے، یہ کسی سرفیس یا کسی کوئل کے تھرو پاس ہو رہی ہو تو then the total number of magnetic field lines passing through a surface or a coil is called magnetic flux۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا اگر ہم اب میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ انکریز کریں گے، اگر سیم ایریا ہمارے پاس ہے، سیم سرفیس ایریا، سیم کوئل ہے، جب ہم میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ انکریز کریں گے تو یہ جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہے ان کے درمیان جو یہ گیپ ہے یہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اس سرفیس کے تھرو اس سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو جائیں گے۔ جب یہ میگنیٹک فیلڈ تھا تھوڑا ویکر تھا، اس وقت کم میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی تھی سرفیس سے۔ جب ہم نے اس کی اسٹرنگتھ انکریز کی، میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ انکریز کی، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی ہے اس سرفیس سے۔ تو in other words we say the magnetic flux increased when we increase the strength of the magnetic field۔ جب ہم نے میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ انکریز کی تو میگنیٹک فلکس انکریز ہوا۔ جب میگنیٹک فیلڈ ویک تھا تب میگنیٹک فلکس بھی کم تھا۔ جب ہم نے اس کی اسٹرنگتھ، میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ بڑھائی، انکریز کی تو میگنیٹک فلکس بھی انکریز ہوا۔ پھر ہم نے ایک اور ایگزامپل دی، اگر اب ہم ایریا کو بڑھائیں گے، ایریا انکریز کریں گے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس ایریا میں زیادہ میگنیٹک فیلڈ لائن پاس ہو گئی، یعنی ایریا بڑھانے سے میگنیٹک فلکس بڑھ گیا۔ یعنی کیا چیزیں اب ہم نے دیکھی کہ اسٹرنگتھ میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ بڑھانے سے میگنیٹک فلکس بڑھ گیا، اور ایریا آف سرفیس، ایریا آف کوئل وہ بڑھانے سے میگنیٹک فلکس اسٹرانگ ہو گیا۔ تب ہم نے کہا تھا میگنیٹک فلکس which is denoted by phi B is directly proportional to B into A۔ B is the strength of the magnetic field and A is the area of the surface یا area of the coil۔ یعنی یہ میگنیٹک فلکس پروپورشنل ہوتا ہے ڈائریکٹلی اسٹرنگتھ آف میگنیٹک فیلڈ۔ جتنا ہم میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ بڑھائیں گے میگنیٹک فلکس بڑھ جائے گا، ایریا آف سرفیس بڑھائیں گے، انکریز کریں گے تو میگنیٹک فلکس بھی انکریز ہوگا۔ تو اب الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہوا؟ میگنیٹک فلکس تو ہمیں سمجھ میں آیا، تو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن اب کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کوئل میں ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، یعنی کوئی کوئل ہمارے پاس ہے، کوئی ایریا ہمارے پاس ہے، اس میں میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، یعنی میگنیٹک فلکس کب چینج ہوتا ہے؟ جب ہم میگنیٹک فیلڈ لائنز کو انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے۔ اگر انکریز کریں گے تب بھی میگنیٹک فلکس چینج ہوگا، ڈیکریز کریں گے تب بھی چینج ہوگا، یا ایریا آف کوئل اس کو چینج کریں گے جو ابھی ہم نے سمجھا، یا میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرنگتھ کو چینج کریں گے تو میگنیٹک فلکس چینج ہوگا، یا اسٹرنگتھ بڑھائیں گے یا ڈیکریز کریں گے، یا ایریا کو انکریز یا ڈیکریز کریں گے
اس سے بھی میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے. تو کیا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن؟ جب کسی کوئل میں ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہوا میگنیٹک فیلڈ لائنز انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے، یا ایریا کو انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے، تو تب کیا ہوتا ہے تب اس کوئل کے اندر ایک ای ایم ایف انڈیوس ہوتا ہے، ایک ای ایم ایف انڈیوس ہوتا ہے یا کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. اسی فنامنا کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. یعنی جب ہم کسی کوئل کے اندر میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے، یعنی میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، تب اس کوئل کے اندر ایک ای ایم ایف یا ایک کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، یعنی ڈیولپ ہوتا ہے، کرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کوئل میں. اسی فنامنا کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. So what is electromagnetic induction? So electromagnetic induction is the phenomena of generating current or EMF in a coil. Phenomena of generating current or EMF in a coil when the magnetic flux linked with the coil is changed. جب ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے تو اس کوئل میں جنریٹ ہوتا ہے کرنٹ یا ای ایم ایف. اسی فنامنا کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. یعنی کسی کوئل میں ای ایم ایف یا کرنٹ انڈیوس ہو، یعنی ای ایم ایف یا کرنٹ جنریٹ ہو کسی کوئل میں، کس وجہ سے؟ الیکٹرو میگنیٹک فلکس کو چینج کرنے سے. تو اس فنامنا کو کہتے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. اب ہمیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بھی سمجھ میں آیا، یعنی کسی کوئل میں کرنٹ یا ای ایم ایف جنریٹ کرنے کو. مگر کب وہ جنریٹ ہوتا ہے اس میں؟ جب ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے، انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے. وہ ہم نے ابھی بتایا کہ magnetic flux is directly proportional to strength of magnetic field and area of the surface, area of the coil. تو اب فیراڈیز کے لاز پہ آئے. اس سے پہلے کہ ہم سٹیٹمنٹ پڑھیں، سٹیٹمنٹ پہ آئے، ایگزامپل سے پہلے سمجھے. تو فیراڈے نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے، تو اس کے بعد اس نے یہ اپنے لاز دیے، جو اس کے لاز ہے فیراڈیز. اس کے 2 لاز ہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ لا. سب سے پہلے وہ ایکسپیریمنٹس کے بارے میں ہم جانیں گے. ہاں، جب اورسٹڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا اگر ہمارے پاس کوئی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے تو اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر اپنی سراؤنڈنگس میں ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ کرتا ہے، یعنی وہاں پر ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے وہ میگنیٹک فیلڈ؟ ان دا فارم آف کنسنٹرک سرکلز. یہ تو اورسٹڈ نے کہا. یعنی کہا جب ہم کسی کوئل کے تھرو، کسی وائر کے تھرو کرنٹ پاس کریں گے تو وہاں پر کیا ڈیولپ ہوتا ہے؟ میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اسی کنسیپٹ پر اس فیراڈے نے کہا اگر جب ہم الیکٹرک فیلڈ یعنی ہم الیکٹریسٹی پاس کرتے کسی کوئل کے تھرو تو وہ ڈیولپ کرتا ہے میگنیٹک فیلڈ، یعنی الیکٹریسٹی سے ڈیولپ ہوا میگنیٹک فیلڈ. تو اس کا ریورس اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا اگر ایک الیکٹرک فیلڈ ڈیولپ کرتا ہے میگنیٹک فیلڈ تو کیا اس کا ریورس بھی ٹرو ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک میگنیٹک فیلڈ ایک الیکٹرک فیلڈ ڈیولپ کر سکتا ہے یا نہیں. یعنی اس کوئل کے تھرو جب الیکٹریسٹی پاس ہوئی تو اس کے ارد گرد کیا ڈیولپ ہوا؟ میگنیٹک فیلڈ. اس نے کہا اگر ہم اسی کوئل کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ کریں گے، یعنی میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس کریں گے اس کوئل کے تھرو، تو کیا اس میں کرنٹ
पास हो सकता है, इसमें करंट इंड्यूस हो सकता है, EMF इंड्यूस हो सकता है। तो उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक कॉइल ली। तो यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर उसने कनेक्ट किया। गैल्वानोमीटर किस लिए कनेक्ट किया, ताकि हम देख सके इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो एक बोर मैग्नेट उसने लाया, क्योंकि उसका रिवर्स वो देख रहा था। जब किसी कॉइल के थ्रू हम करंट पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है उसके इर्द गिर्द। अब उसने कहा अगर हम किसी कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो क्या उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा या नहीं, EMF इंड्यूस हो जाएगा या नहीं। तो उसने एक बोर मैग्नेट लाया, नॉर्थ पोल कॉइल के साइड में रखा, तो साउथ पोल इस साइड। तो जब इसने इनको रेस्ट में रखा, इसको भी यहीं पर रखा और यहाँ पर भी, ये रेस्ट में दोनों थे, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती रहती है। बोर मैग्नेट की बात अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और इसने उसको कॉइल के नज़दीक रखा था, मगर वो क्या ऑब्जर्व क्या किया उसने, कि उसने देखा कि इस गैल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। तो यानी वो जो सोच रहा था वो नहीं हो रहा था। फिर अचानक उसने क्या किया, इसने इस मैग्नेट को अब खींचा, यानी उठाने की कोशिश की। तो इसको मूव किया, यानी इस तरह उठा के ऐसे ले गया। जो ही उसने इस मैग्नेट को मूव किया तो क्या देखा उसने गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखी। यानी इसका मतलब इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, यानी EMF इस कॉइल में इंड्यूस हो गया। जो उसका आइडिया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखेंगे तो वहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा या EMF इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल में। मगर ये उसने नहीं समझा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो, ये जो मैग्नेट हो, ये मूविंग यानी ये रेस्ट में ना हो। तो यहाँ पर उसने क्या देखा, जब उसने मूव किया तो यहाँ डिफ्लेक्शन आई। फिर उसने इसको वापस लाया तो उसने फिर देखा इसमें डिफ्लेक्शन, मगर रिवर्स डायरेक्शन में। यानी क्या देखा उसने, जब अब इसके नज़दीक लाया तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन थी, तो जब वापस ले गया तो इस डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्शन देखी। तो जब फिर रेस्ट में रखा कॉइल को भी मैग्नेट को भी, तो कोई भी यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं है। तो किस नतीजे पे फिर वो पहुंचा फैराडे, उसने कहा जब हम किसी मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो उससे क्या होता है, जो से हमने अभी देखा कि जब किसी सरफेस या कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो जाती है तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, चेंज कब होगा, जब इसको नज़दीक लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जब दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है कॉइल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। जब इसको हम दूर ले रहे हैं, दूर जा रहा है इस कॉइल से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो बहुत कम लाइनें पास हो रही है इस कॉइल के थ्रू, किसी सरफेस के थ्रू, उसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यानी यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी EMF इंड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर जनरेट करंट हो रहा है, यानी करंट जनरेट हो गया। तो कब करंट जनरेट हुआ, जब उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, यानी मैग्नेट को पहले
इसके नज़दीक लाया फिर दूर ले गया, यानी इसको मूव किया, मैग्नेट को मूव किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हुआ तब इसमें करंट जनरेट हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उसने किया। अब थोड़ा मैं बताऊंगा कि इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर हमारे पास कोई कॉइल है, सेम मान लीजिए ये कॉइल है, यहाँ पर हम कोई बैटरी सोर्स है हमारे पास, तो जब बैटरी इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस कॉइल के थ्रू करंट चल रहा है, यानी इस कॉइल के थ्रू करंट पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है। मगर कब? जब हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की थी, यानी हम इसको कोई सोर्स दे रहे हैं, हमारे पास बैटरी सोर्स है, तब इसमें करंट पास हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड करंट का मतलब है जब हम किसी कॉइल के थ्रू करंट को जनरेट करेंगे, मगर इस सोर्स के बगैर, एक्सटर्नल सोर्स के बगैर, यानी यहाँ कोई बैटरी हम नहीं कनेक्ट करेंगे इस सर्किट में, उसके बगैर इसमें जो करंट जनरेट हो या करंट डेवलप हो या ईएमएफ डेवलप हो, तो उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। उसी के खोज में फैराडे था। यानी वो कब होता है? जैसे हमने यहाँ देखा, कोई भी हम बैटरी सोर्स यहाँ हमने नहीं लगाया, सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया ताकि हम देख रहे हैं कि इसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो वहाँ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जब हमने बैटरी यहाँ कनेक्ट की, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, जब हमने बैटरी को ऑन किया तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, यानी करंट चल रहा है। यहाँ तो करंट चलेगा ही क्योंकि हम बैटरी, हमारा आउटपुट है, यहाँ पर कोई सोर्स है। मगर जब हमारे पास कोई सोर्स ना हो, तब इसमें जब कोई करंट जनरेट हो रहा हो, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। उसी करंट को कहते हैं जो किसी सोर्स के बगैर प्रोड्यूस हो, जिस तरह इस फैराडे के लॉ में हमने देखा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है इस कॉइल में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर इसने दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट किया? फिर उसने एक कॉइल आई, उसमें बैटरी कनेक्ट की, और फिर दूसरी कॉइल लाई, उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। तो यहाँ बैटरी ऑन की, यानी की यहाँ पर थी, की को क्लोज किया। जब की को क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो हो गया। जब इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो वो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, यानी इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ओरस्टेड ने कहा था। तो क्या किया यहाँ पर फिर फैराडे ने? जब ये दोनों रेस्ट में है तो कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है। अब उसने क्या किया? अब इसने इस कॉइल को मूव किया, पहले इसके नज़दीक लाया तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है इस डायरेक्शन में, फिर इससे दूर ले गया, यानी इसको मूव किया इससे दूर, तो उस वक्त भी उसने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। फिर इसने क्या किया? फिर इसको रेस्ट में रखा। अब इस कॉइल को मूव किया, पहले इसको इसके नज़दीक लाया तो उस वक्त भी उसने देखा कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही। फिर इसको दूर ले गए इस कॉइल से, उस वक्त भी उसने देखा कि करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, यानी क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी उसने देखा कि यहाँ पर ये इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हम इसको मूव करें, उस वक्त भी इसमें इंड्यूस हो रहा है करंट, या इसको मूव करें, यानी यहाँ पर
یا मैग्नेट को हम मूव करें उस वक्त भी इसमें करंट जनरेट हो रहा है, या इस कॉइल को ही मूव करें तब भी इसमें करंट जनरेट हो रहा है। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से इसने देखा कि इनमें करंट, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इसने तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर इसने एक कॉइल ली, मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल ऐसे ली। अब ऐसे कॉइल बनाएंगे, इसमें गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, फिर यहाँ से एक और कॉइल ली और इस कॉइल में बैटरी यहाँ पर की है, यहाँ पर बैटरी इस सर्किट में लगाई, इस कॉइल में। तो क्या देख रहा है वो अभी स्विच ऑफ है, यानी ये की हमने प्रेस नहीं की, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब ऑफ होगी स्विच, की ऑफ होगी, तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं चल रहा है। जब कोई करंट नहीं चल रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो फिर क्या किया उसने इस की को प्रेस किया। जब जो ही इसने इस की को प्रेस किया, यानी सर्किट कंप्लीट हो गया, इसके थ्रू करंट चलना शुरू हो गया। तो उसने क्या देखा, जो ही इसने प्रेस किया तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गई, बहुत कम टाइम के लिए। तो फिर ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यानी ये पहले जो इसमें ये सुई होती है यहाँ पर आ गई, फिर ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ गई जहाँ पर ये सुई थी, जीरो डिफ्लेक्शन पे, यानी अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। सिर्फ कब आई थी, जो ही इसने ये की को प्रेस किया था, उसी वक्त विद इन नो टाइम आ गया था, फिर वापस सुई अपनी जगह पे आई। अब ये की प्रेस ही है, मगर इस गैल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने इस को ऑफ किया, स्विच ऑफ की। जो ही स्विच ऑफ की तो उसने देखा उस वक्त भी इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वानोमीटर में, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब भी हम किसी कॉइल, ये मान लीजिए हमारे पास कॉइल है, इसके थ्रू हम करंट पास कर रहे हैं, से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है इस कॉइल के थ्रू, यानी बैटरी सोर्स हमने दी, की को प्रेस किया तो सर्किट कंप्लीट हुआ। अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया, हमने कहा 2 एम्पियर का करंट। तो जो ही हमने की को प्रेस किया, यानी सर्किट कंप्लीट हुआ, तो इस कॉइल के थ्रू एट वंस ये 2 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होता है। क्या होता है कि उसमें कुछ टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, मगर कुछ ना कुछ टाइम लगता है। यानी पहले क्या होता है 0.1 एम्पियर, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 1 एम्पियर, 1.1, 1.2, तो 2 एम्पियर तक पहुंच जाता है। यानी कुछ टाइम लगता है इसको, इस कॉइल के थ्रू ये 2 एम्पियर करंट चलने में। थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा इसमें करंट पास होने में। यानी पहले कम करंट था, तो क्या हो रहा है, जब कम करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी। जो ही करंट बढ़ना शुरू हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ने शुरू हो गई, यानी उसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, तो तभी इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। तो जब अब ये दो किसी टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद या आधे सेकंड के बाद, अब इसमें ये करंट चलना शुरू हो गया, तो कितना करंट इसमें चल रहा है 2 एम्पियर। अब ये कंटिन्यूसली इसमें 2 एम्पियर करंट चल रहा है, यानी अब हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कांस्टेंट है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यानी पहले कम थी, फिर ज़्यादा 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 हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज हो रहा था, पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया। अब जब करंट कांस्टेंट है उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, तभी ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। यानी जब ऑन ही था, सर्किट ऑन ही था, उस वक्त भी कोई करंट इसमें नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो ही इसने की को ऑफ किया, जो ही हमने की को ऑफ किया, तो फिर हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो ही स्विच ऑफ किया हमने, इस सर्किट में स्विच ऑफ किया, तो अब ये करंट इस कॉइल में नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने इसमें करंट प्रोड्यूस किया था, तो 2 एम्पियर करंट इसमें चलना था, वो एट ए टाइम 2 एम्पियर नहीं चला था, पहले से 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.9, 1 एम्पियर, 1.1, 1.2, तो जब तक 2 एम्पियर चला था, कुछ टाइम लगा था इसमें, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो इसी तरह जब स्विच को ऑफ करेंगे ये एट 1 पर नहीं आएगा। यहाँ पर भी ये पहले 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, फिर 1 पर, फिर 0.9, 0.8, यानी फिर 0 पे आएगा, यानी कुछ टाइम लगेगा इसको वापस 0 पे आने में। यानी इस वक्त भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी जो ही हमने स्विच को ऑफ किया तब भी हमने डिफ्लेक्शन देखी, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम ही लगा, मगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। तो जो ही हमने स्विच ऑन की फिर हमने डिफ्लेक्शन देखी, मगर रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑन के वक्त अगर इस डायरेक्शन में तो ऑफ के वक्त इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देख रहे थे। और जब स्विच ऑन ही रखा हमने तो फिर इसमें कोई डिफ्लेक्शन हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था। तो इन एक्सपेरिमेंट से फिर फैराडे ने एक लॉ दिया है, दैट इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है? whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, यानी जब भी हम amount of magnetic flux को change करेंगे which is linked with the coil, then an EMF is induced in the coil. इस coil में एक EMF induce हो रहा है। अगर ये coil ओपन है तब जो इसमें इंड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड EMF। जब हम इसको क्लोज करेंगे, यानी इसमें एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे, यानी एक क्लोज्ड सर्किट है, तब इसमें जो इंड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ? whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? EMF. EMF is induced in the coil. That is Faraday's first law of electromagnetic induction. तो उसका सेकंड लॉ इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।